Hello all my dear students, a precious good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari, your biology teacher, and I am present here with a new topic, that is what medical termination of pregnancy. And as you know that at present your chapter number 4 reproductive health is running, and in previous video we have discussed about the method of contraception part numbers 2. So before starting medical termination of pregnancy, actually there are certain questions or certain points those were just left or skipped in previous video. As we discussed in the video that oral contraceptive as well as implants as well as various kind of contraceptive injections, all these are the combination of progesterone, but as you know that they are just given from outside, so these are the not natural composition of progesterone, hence these are the synthetic progesterone. तो ये क्या होते हैं बेटा, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होते हैं. तो क्वेश्चन पूछा गया है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन. तो क्वेश्चन पूछा गया है बेटा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और कंपटीशन में भी कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन. तो बेटा यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोजेस्टिन एज वेल एज levonorgestrel. Both progestin and levonorgestrel, all these are the synthetic progesterone. और ये किस में पाए जाते हैं? These are the combination in, ये combination होते हैं first oral pills, second injections, third implants. तो जो भी बेटा मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन है, चाहे वो ओरल पिल का हो, इंजेक्शन के फॉर्म में हो या इम्प्लांट्स, हियर देयर इज नो नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन. एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन ही होते हैं बट वो सिंथेटिक होते हैं. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ वी विल स्टार्ट व्हाट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. तो एक्चुअली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन इंडिया was legalized मतलब ये लीगल हुआ by medical termination pregnancy act, medical termination pregnancy act 1971. यानी इंडिया में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगल किया गया या अबॉर्शन को लीगल किया गया अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स और क्वालिफाइड डॉक्टर्स इन 1971 बाय द एक्ट दैट इज नोन एज मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट. ओके, एंड comes in effect यानी इफेक्टिव कब हुआ? इन अप्रैल 1972 में ये इफेक्टिव हुआ. एंड फाइनलाइज्ड इन 1975. यानी सुधार या अमेंडमेंट करने के बाद पूरी तरह से फाइनलाइज कब हुआ? 1975 में. तो अगर आपसे पूछा जाए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज मेड इन 1971. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कम्स इन इफेक्ट इन 1972 and amendment is done in medical termination pregnancy act in 1975. 1975 में सुधार किया गया, 72 में लागू किया गया, 71 में बनाया गया. So this was all about medical termination pregnancy act. As I mentioned, this is also known as abortion. And nowadays in India there are two methods of termination of pregnancy. And one more important thing, this is safe in first trimester only. यानी up to only
3 months, केवल 3 महीने के लिए ही बेटा, अप टू ओनली 3 months, 3 महीने तक ही ये क्या हो सकते हैं, इफेक्टिव हो सकते हैं। 2 तरह के होते हैं मेडिकल टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी आपकी 2 तरह की है, यानी MTP की 2 कैटेगरीज हम देखेंगे। फर्स्ट मेडिकल एबॉर्शन, मेडिकल abortion, and the second one is here surgical abortion, medical abortion and surgical abortion। 2 तरह के abortion हैं और there are 2 kind of medical termination। so medical abortion, this is effective up to 7th week of प्रेगनेंसी, यानी हार्डली हम कह सकते हैं अप टू 50 डेज। कितना? अप टू 50 डेज। एंड हियर मेडिसिन्स और pills are given, medicine or pills are given for termination of pregnancy, for termination of pregnancy under the supervision of doctors, so medical abortion, this is effective up to 7th week of pregnancy, up to 50 days, and this is a method in which oral contraceptive or medicines are given for the abortion. And here actually pills contains certain hormones and chemicals that lower the level of progesterone and increase the level of FSH, follicle stimulating hormone, and LH, luteinizing hormone. Actually this medical abortion, here medicines or pills are given for the termination of the pregnancy. And one more important thing, pills those contain certain amount of chemicals or hormones or various combination that just lowers the level of progesterone in the body and increase the level of secretion of FSH and LH. That's why there will be ovulation and menstrual cycle will be started, those who are arrested due to pregnancy. अब हम बात करेंगे बेटा सर्जिकल मेथड की। Here surgical method, this is effective up to 12 month, up to 12th week। ठीक है, यानी जो सर्जिकल मेथड है ये अगर देखा जाए तो 7 से 12 हफ्ते तक इफेक्टिव होता है, यानी नियरली कितने मंथ्स तक? 3 मंथ्स तक ये इफेक्टिव है। या हम लिख सकते हैं इफेक्टिव इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, केवल पहले ट्राइमेस्टर में ही ये इफेक्टिव है। दिस इज ऑल्सो नोन एज सक्शन, दिस इज ऑल्सो नोन एज सक्शन, एस्पायरेशन, abortion. This is also known as suction, aspiration, abortion, and done
by only doctors in hospitals done by doctors in hospital by using special instruments, So this was all about medical termination of pregnancy. Now we will discuss about the side effect of medical termination of pregnancy. Okay, तो बेटा क्या है, रिस्क ऑफ एमटीपी का क्या रिस्क है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का क्या रिस्क है. हियर फर्स्ट, डैमेज टू वूम्ब, जिसे आप यूट्रस भी कहते हो, एंड सर्विक्स, क्योंकि बेटा ये एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है, इस वजह से ये क्या कर सकता है, वूम्ब या सर्विक्स को डैमेज कर सकता है. नेक्स्ट, परफोलेशन इन यूटेरस, यानी जिसे आप कहते हो होल इन यूट्रस में क्या हो जाता है, होल हो सकता है. नेक्स्ट है आपका एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से डेथ भी हो सकती है. नेक्स्ट, इनफर्टिलिटी, नेक्स्ट, कैन डैमेज अदर वाइटल organs such as urinary bladder, यानी यूरिनरी ब्लैडर को ये क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है. लास्ट, इररेगुलर menstrual cycle, one more, infection in uterus and reproductive tract, यानी ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या यूट्रस में इन्फेक्शन भी कर सकते हैं. तो बेटा बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में. दैट्स वाई इन एक्सट्रीम इमरजेंसी कंडीशन वी हैव टू परफॉर्म एमटीपी. बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन है तभी आप एमटीपी करिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये लाइफ थ्रेटनिंग है. परमानेंट इनफर्टिलिटी आ सकती है, पूरे यूट्रस को, यूरिनरी ब्लैडर को, सर्विक्स को, फैलोपियन ट्यूब को ये डैमेज कर सकता है. तो दिस इज़ वेरी वेरी हाई रिस्क टेक्निक. एंड 1/5 of total pregnancy, 1/5 of total pregnancies using एमटीपी, यानी टोटल बेटा जितनी प्रेगनेंसी होती है उसमें से 1/5 यानी 5वां भाग उसका लोग क्या कर देते हैं, एमटीपी का यूज़ कर लेते हैं. एंड नाउअडेज दिस इज ऑल्सो मिसयूज्ड, इसको हम क्या कर रहे हैं, मिसयूज्ड इन फीमेल फीटिसाइड. अभी इसके ताज़ा जो उदाहरण है बेटा, फीमेल फीटिसाइड, यानी एमटीपी फीमेल फीटिसाइड को लगातार बढ़ावा दे रही है. तो दिस वाज ऑल अबाउट एमटीपी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. ओके देन स्टूडेंट्स, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट एसटीडीज, जिसको आप क्या कहते हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड disease or infection. Nowadays this is known as sexually transmitted infection. और ये जो होता है ड्यू टू sexual intercourse
ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स ओनली, यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज स्प्रेड होती हैं। इन योर सिलेबस देयर आर एट लीस्ट 3 कैटेगरीज ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। द डिजीज नंबर 1 दैट इज bacterial disease. Here we will discuss only introductory part, and in next video we will discuss about details. So viral disease, and in the last we will discuss about protozoan disease. Protozoan disease यानी 3 तरह की STDs हम देखेंगे जो कि प्रोटोजोआ से, वायरस से और किससे हो जाती हैं, बैक्टीरिया से हो जाती हैं। देयर आर सर्टेन फंगल डिजीज ऑल्सो, बट दोज आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय अदर मीन्स। इन रेनी सीजन और इन समर सीजन यू ऑफन सफ़र फ्रॉम द वर्म डिजीज और रिंग वर्म डिजीज। दांत खाद खुजली से ऐसे भी परेशान रहते हैं, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। हम यहाँ पे देखेंगे 3 मेजर कैटेगरीज। तो सबसे पहले सबसे आसान क्या होता है, वायरल डिजीज़। हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट एड्स, acquired immunodeficiency syndrome. Second we will discuss about hepatitis B, और तीसरा हम देखेंगे यहाँ से जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसे आप कहते हो जेनाइटल वॉट एज वेल एज जेनाइटल वॉट एड्स। ये एड्स और हेपेटाइटिस, जेनाइटल वॉट आपके वायरल है। सबसे तगड़ा होता है बेटा बैक्टीरियल डिजीज। वी विल डिस्कस अबाउट हियर फर्स्ट सिफिलिस, सेकंड गोनोरिया। सेकंड हम क्या डिस्कस करेंगे, गोनोरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड PID, जिसे कहा जाता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, इसके बारे में भी हमको डिस्कस करना है। फोर्थ हम देखेंगे क्लेमाइडियासिस, और लास्ट में हम देखेंगे कॉनक्रॉइड। तो ये बेटा आपकी सिफिलिस के साथ साथ गोनोरिया, PID, क्लेमाइडियासिस एज वेल एज क्लेमाइडियासिस एंड कैनक्रॉइड। ये कैनक्रॉइड भी, ये सभी क्या हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म को फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे आसान है, एड्स इज कॉज्ड बाय HIV वायरस, किसके द्वारा, HIV वायरस के द्वारा। हेपेटाइटिस किसके द्वारा, हेपेटाइटिस B वायरस, HVV वायरस, ठीक है। जेनाइटल वॉट किस पे, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस, इसको क्या कहा जाता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से क्या होता है बेटा, जेनाइटल वॉट डिजीज़ होती है। अब यहाँ से हम देखेंगे सिफिलिस, गोनोरिया, PID, क्लेमाइडियासिस और कॉनक्रॉइड के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिफिलिस किससे होता है बेटा, ट्रिपोनिमा पैलिडम, किससे होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडम। ध्यान ही रखिएगा, एक होता है ट्रिपनोसोमा, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं पता चले ट्रिपनोसोमा से ट्रिपोनिमा, तो ये बैक्टीरिया होता है, ट्रिपनोसोमा प्रोटोजोआ। सो ट्रिपोनिमा पैलिडम। नेक्स्ट है बेटा आपका गोनोरिया, तो इसे हम कहते हैं नीशेरिया गोनोरी, नीसेरिया होता है, नीसेरिया गोनोरिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लर्न करना है, इसका कोई जुगाड़ नहीं है। नीसेरिया गोनोरी, ये होता है ट्रिपनोनिमा पैलिडम से। अब यहाँ से हम देखेंगे PID किससे होता है, PID इज जस्ट बाय क्लेमाइडिया
क्लेमाइडिया नीसेरिया, क्लेमाइडिया नीसेरिया, यानी क्लेमाइडिया नीसेरिया, निसेरिया से जो कि बैक्टीरिया है, इससे कौन सी डिजीज होती है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। हम यहाँ से देख लेते हैं क्लेमाइडियासिस किससे होता है। सिंपल है ये बेटा, सबसे आसान यही है। दिस इज बाय क्लेमाइडिया, इससे क्लेमाइडिया से, एंड दिस इज बाय हीमोफिलस, हीमोफिलस, हीमोफिलस यानी डुक्रेई, किससे होता है? हीमोफिलस डुक्रेई। तो ये आपको, ये आपकी जितने भी हैं बैक्टीरियल डिजीज है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। बट अब आप कहेंगे सर इतना ज़्यादा है, कैसे हम याद करेंगे, कैसे हम बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन के लिए तैयार करेंगे इनको? सो ऑल आर नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से आप देखें होता है ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास वजाइनैलिस, ट्राइकोमोनास वजाइनैलिस, दिस इज ए व्हाट? प्रोटोजोआ। ये बेटा आपका इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज ट्रिपल स्टार। एड्स, दिस वन इज ऑल्सो ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। नेक्स्ट हियर वी विल डिस्कस अबाउट सिफिलिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोनोरिया, दिस वन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो यहाँ से, एक ये आपका और ये, तो ये चार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन द लास्ट फिफ्थ वी हैव टू डिस्कस अबाउट पीआईडी। तो जितनी हमने आपको बताएं, यहाँ से अगर आप 5 पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी? सिफिलिस, गोनोरिया, पीआईडी, एड्स, इट इज सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ यू, बट यू हैव टू रीड ऑल दोज। अगर आप सब पढ़ लेते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन ये 5 आप स्किप नहीं कर सकते। उम्मीद है इंट्रोडक्शन आपको और एमटीपी भी आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। एज यू नो दैट इट्स वेरी ह्यूमिड कंडीशन, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ वेरी लार्ज और लॉन्ग वीडियो or video of long duration. So that's why I think 20 or 25 minutes that is sufficient. In the next topic we will discuss about amniocentesis, जो कि एक टेक्निक है, काफ़ी ज़्यादा important है। And from this topic, that is what STDs, this is very very important. 1 mark क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर यहाँ से जरूर आता है बेटा, वो कभी भी आपके कंपटीशन में हो, और इट्स द पार्ट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। नेक्स्ट दैट इज व्हाट, अभी आपका एमनियोसेंटेसिस है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। तो मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन से एक क्वेश्चन कंफर्म होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से एक क्वेश्चन कंफर्म होता है, एमनियोसेंटेसिस से भी एक क्वेश्चन कंफर्म होता है। सो एक्चुअली all things are pre-written, but we have to revise it carefully. So this is all about for today. We are very very thankful for watching the video. I hope that you will able to understand. If you are able to understand and like the video, then press the like button, share the channel, subscribe the channel, and also share the video with your friends. So that is all about for today. Like always, keep smiling. Have a nice day. Jai Hind.